Dear students, today we are going to start a new chapter named Dual Nature of Radiation and Matter. We used to say radiation is wave. Radiation means wave, but here topic is dual nature of radiation, means radiation will possess dual nature named wave nature as well as particle nature. And second thing is dual nature of matter. Matter is particle, but it also possesses wave nature. That's why topic is dual nature of radiation and matter. We have to study about dual nature of both radiation as well as matter. First of all, come over some basic terms. First one is your free electrons. Question is this, what do you mean by free electrons? Then we used to say, in case of metals, the outermost electrons are very loosely tagged with parent atoms. Outermost electrons are loosely, in case of metals, outermost electrons are loosely tagged with their parent atoms. After getting very small amount of energy, you can say that which may be equal to vibrational energy. After getting very small amount of energy, they come out from the atom and becomes freed from its parent atom. मेटल के केस में क्या होता है कि यह जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है अपने पेरेंट एटम से जो है उसके न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है, उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाता है, राइट। बहुत कम एनर्जी पा करके, यू कैन से वाइब्रेशनल एनर्जी पा करके जो है वह बाहर चला आता है, अब पूरे मेटालिक क्रिस्टल में जो है जिगजैग मैनर में मूव करते रहता है, राइट। इट मीन दैट कि अपने न्यूक्लियस से जो है बाहर निकल करके अपने एटम से बाहर निकल करके और जो है अपने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाता है, राइट। दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ऐसे जो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर होता है, राइट, बट यह क्या है, एटम से बाहर आ जाता है इलेक्ट्रॉन। मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने एटम से बाहर आ जाता है और पूरे मेटल में घूमते रहता है, मीन्स फ्री हो जाता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी यूज टू से इन मेटल्स electrons which get freed from its parent atom and move throughout the lattice are known as free electrons, right? तो मेटल के केस में यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, राइट। मेटल के केस में जो है यह फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो यह इलेक्ट्रॉन जो है सभी अपने पेरेंट एटम से तो जरूर निकल गए हैं और फ्री हो गए हैं, मीन्स दीज हैव बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट क्वेश्चन इज दिस कि क्या वह जो मेटालिक लैटिस है जो कंडक्टर है उससे बाहर भी निकल आता है? एंड आंसर इज नो, वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। वाई? कि व्हेन दे विल कम आउट फ्रॉम द एटम, देन लिसन कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स parent atoms will become positively charged particle, and we know that opposite charges attract each other. It means that when any electron will come out from the atom, then its parent atom, or you can say whole conductor, will become positively charged, which will prevent escaping of electrons, right? और यही होता है। Then we used to say, but these free electrons remain confined inside the conductor. These free electrons remain confined inside the conductor, right, and cannot leave its surface at ordinary temperature and under moderate electric field. यह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने एटम से फ्री हो गए हैं तो क्या है वह क्रिस्टल लैटिस से भी बाहर निकल कर चले आएंगे? क्या वह मेटालिक लैटिस से बाहर निकल के चले आएंगे? देन आंसर इज नो। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर दे डू नॉट कम आउट फ्रॉम दी एटम, वो एटम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, राइट। वाई? क्योंकि वह अट्रैक्शन जो होगा, जो एटम मेरा जो है यू कैन से एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा
और कह दीजिए मेटालिक क्रिस्टल जो है दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, राइट, उसको अट्रैक्ट करेगा। इट मीन दैट अट्रैक्शन देयर इज मीन्स free electrons experiences attraction due to parent atom, or you can say due to positively charged conductor, and that's why these free electrons do not come out from the atom, right? It means that there is barrier for free electrons to come out from the atom, right? These barriers, to break these barriers there is need of energy. To break these barriers there is need of energy. That's why we used to say that at ordinary temperature these free electrons do not come out from the atom, but when we will increase temperature, means we will give heat energy, then after getting energy these electrons can come out, right? One more thing, at moderate electric field again these free electrons do not come out from the atom, but when we will place a metallic conductor in very strong field, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से सेटअप करें कि जो है इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करे फील्ड के अपोजिट जो है फोर्स, इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करे कि मेटल से बाहर आ जाए तो आ सकता है। बट मॉडरेट फील्ड मीन्स यू कैन से फील्ड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रेंथ में यह नहीं निकल पाएगा। बट व्हेन फील्ड विल बी स्ट्रांग, फोर्स विल बी स्ट्रांग, देन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट आफ्टर गेटिंग एनर्जी और आफ्टर गेटिंग फोर्स, राइट? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नीड एनर्जी टू ओवरकम दिस पोटेंशियल बैरियर। क्योंकि आपका जो है न्यूक्लियस मेरा हो गया और एटम एज ए होल हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड लेट अस सपोज इट इज योर इलेक्ट्रॉन, इन टर्म ऑफ फोर्स यू कैन से कि यह जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा, मेटालिक लैटिस से जाने नहीं देगा, राइट? इन टर्म ऑफ बैरियर, पोटेंशियल बैरियर के टर्म में समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि लेट अस सपोज इट इज your positively charged nucleus or atom, right? And it is your free electron. Then we used to say it is your positively charged particle, right? अब यह जो है लिसन दो तरीके से इसको समझ सकते हैं, यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू विल बी निगेटिव, राइट? विल बी निगेटिव, तो निगेटिव होगा। अब हम लोग इतना एनर्जी दें कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, इट मीन दैट दे विल बी इनफाइनाइटली सेपरेटेड, तब ये बाहर आ जाएगा, राइट? It means that there is need of energy for removal of electron from its metal surface. The minimum amount of energy which is required, by an electron to just escape from the metal surface is called work function of the metal. जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की स्केपिंग के लिए फ्रॉम मेटल सरफेस से, दैट वेरी एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड इट इज डिनोटेड बाय W0 और 50, राइट? As this very work function is amount of energy, it means that its unit should be joule, but we express this very work function in term of electron volt, but it is energy, so it can be converted into joule because joule is a SI unit of energy, right? And then we used to write one, then question is this, what is the relation between this very electron volt and joule? Then we used to say 1 electron volt
is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. Right? Question is this कि how can we say 1 electron volt will be equal to this much joule? Right? Then come over this very topic, electron volt. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इस पर आइए जरा सा. Let us suppose you have written 1 electron volt. Then question is this कि 1 electron volt will be how much joule? Then to come over that, first we will define this very electron volt. 1 electron volt, we can write 1 electron volt will be equal to 1 electron into 1 volt. 1 electron volt equal to 1 electron into 1 volt. Question is this कि अब इससे आगे हम लोग क्या बोलेंगे. Then listen here, let us suppose here you have 2 points A and B and potential difference between these 2 points is 1 volt. Right? 1 volt. Let us suppose this very point is at higher potential and this very point is at lower potential. Right? Then when you will have 1 electron, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, then it is sure that this very electron will experience force from lower potential to higher potential. We always used to say protons always move from higher potential to lower potential. Protons always move, current always flows from higher potential to lower potential, and current is flow of protons, means protons always flows from higher potential to lower potential, but electrons always flows from lower potential to higher potential. मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा. जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा, राइट, देन क्यों आएगा, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है. यह नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यह अट्रैक्ट करेगा. मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और जब ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी. इट मीन दैट इट विल गेन वेलोसिटी, एंड व्हेन इट विल गेन वेलोसिटी इट मीन दैट नाउ इट विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी. देन वी यूज टू से 1 electron volt is that amount of energy which is gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. 1 electron volt is that amount of energy which is gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो जितना एनर्जी गेन करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर आप इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जाना चाहेंगे तो यह नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, सॉरी प्रोटोन यह जो है अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो उधर जाएगा नहीं राइट साइड में. इट मीन दैट अगर इसको मूव कराना है तो पुशअप कीजिए, फोर्स लगाइए, डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन्स वर्क डन कीजिए, मीन्स एनर्जी दीजिए. देन व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन वी कैन से 1 electron volt is that amount of energy which is required by an electron to move from one point to another point having potential difference of 1 volt. Having potential difference of 1 volt. Right? तो यह जो हम लोग जो वर्क फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट? इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल. देन कम ओवर हेयर वंस अगेन. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब इंटू एंड 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब. कूलम्ब कैंसल, तो इतना इंटू होगा तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. राइट? एंड वी यूज टू राइट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. राइट?
It means that after giving energy to an electron, emission of electron can take place. मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग मेटल सरफेस को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, राइट. देन नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय द हेल्प ऑफ विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक प्लेस. व्हाट आर द डिफरेंट वेज by the help of which emission of electrons can take place. Then we used to say there are four ways. There are four ways. First come over electron emission. Then we used to say phenomenon of emission of electrons from a metal surface is called electron emission. Phenomenon of emission of electrons from a metal surface is called electron emission. Right. Then what are the different ways of electron emission? Then first way is thermionic emission. Come over thermionic. Thermionic word is framed from the word therm plus ion. Therm plus ion. Ion means charged particle, here electrons. And therm means heat. It means that emission of electrons by the help of heat. Emission of electrons by the help of heat, right. Emission of electron by the help of heat is known as thermionic emission. It means that हम लोग हीट देंगे, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल जो है हीट गेन करेगा, मीन्स एनर्जी गेन करेगा. एंड व्हेन दैट वेरी एनर्जी विल बी मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन free electron, after getting energy, free electron will come out from the metal, right. And this very emission is known as thermionic emission. Emitted electrons are known as thermions or thermoelectrons, right. Second method is field emission. What is the meaning of field emission? Means simply we can say emission of electrons by the help of electric field. Emission of electrons by the help of electric field. Question is how? Then see here, let us suppose it is your metallic lattice and it is your free electron. It is your positively charged metal. Then what will happen? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है या पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा. एंड नाउ लेट अस सपोज हमको इलेक्ट्रॉन को इधर निकालना है, इधर निकालेगा, अगर इधर फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे बहुत ज़्यादा फोर्स तो इसके जो कि इसके अट्रैक्शन से पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से ज़्यादा हो तो बाहर चला आएगा. देन क्वेश्चन इज दिस, इट मीन दैट अगर इलेक्ट्रॉन पर हम लोग इधर फोर्स लगा दें तो यह जो है बाहर आ जाएगा. क्वेश्चन इज दिस कि क्या फील्ड के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा सकते हैं? एन आंसर इज यस. वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स अपोजिट टू द फील्ड. तो ऐसा कीजिए कि जो है इस डायरेक्शन में एक फील्ड लगा दीजिए. व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, देन दिस वेरी इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स in opposite direction, and when this very force will overcome electrostatic attraction between these two, then it is sure that electron will come out from the metal, right. It means that here emission of electron is taking place by the help of field. That's why it is known as field emission, right. Third one is your photoelectric emission. Question is this, what is this very photoelectric emission? First come over word photoelectric. This very photoelectric is framed from the two word photo plus electric. Means emission of electric charge. Here electrons. Means emission of electrons by the help of photo. Photo means light. Means emission of electrons by the help of light is known as photoelectric emission, right.
इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा मेटल सरफेस होगा उस पर हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएंगे, वह लाइट से के पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को गेन करके आपका इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाएगा। देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फोटो, राइट। बट वन कंडीशन इज हेयर, जो फोटोन जो मेरा लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके पास जो भी एनर्जी है दैट शुड बी मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन से अधिक होना चाहिए, राइट। समझ रहे हैं ना? दैट्स वाई वी यूज टू से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस बाय द हेल्प ऑफ फोटो, बाय द हेल्प ऑफ फोटो मीन्स लाइट ऑफ सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी। वी यूज टू से लाइट इज ए वेव। अगर लाइट को हम लोग वेव की बात करते हैं, इट मीन दैट यू कैन से उसके पास वेव एनर्जी है, और अगर वह एनर्जी है तो लाइट अगर वेव है तो उसका वेवलेंथ होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। देन वी यूज टू से कि वह जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसका जो इक्विवेलेंट एनर्जी होना चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। देन एंड ओनली देन emission of electron will take place, and the emitted electron which do we get, that very emitted electron is known as photoelectron, right? Next method is secondary emission. Question is this कि what is this very secondary emission, right? यह सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि हम लोग एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग मेटल सरफेस पर बम्बार्ड करते हैं, और जब मेटल सरफेस पर बम्बार्ड करेगा, जब उसको हिट करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी जो है वह मेटल सरफेस को दे देता है, मेटल को दे देता है, कंडक्टर को दे देता है। एंड आफ्टर गेटिंग दैट वेरी एनर्जी, कंडक्टर जो है एनर्जी गेन करके उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, एंड आफ्टर वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है दैट वेरी फ्री इलेक्ट्रॉन gets energy and come out from the metal. It means that here emission of electron by the help of another electron takes place. That's why this very emission is known as secondary emission. और जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन तो जो हमने हिट किया, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दैट वेरी इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई दिस वेरी इमिशन इज नोन एज सेकेंडरी इमिशन। एंड वी यूज टू से इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन from a metal surface when a fast moving electron strikes the metal surface is known as secondary emission, and the emitted electrons are known as secondary electrons, right? Now come over फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में जो है, पिछले चैप्टर में, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट शोज बोथ नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, एंड रियली लाइट इज रेडिएशन, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, electromagnetic wave means electromagnetic radiation means electromagnetic wave, and wave means light shows वेव नेचर। क्वेश्चन इज दिस कि क्या जो है लाइट विच इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो पोजेज फोटोन नेचर, फोटोन मीन्स ए पार्टिकल नेचर। देन क्वेश्चन इज दिस कि क्या जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वी विल स्टडी दैट वेरी थिंग हेयर। वी यूज टू से सम फेनोमेना ऑफ लाइट लाइक इंटरफेरेंस, diffraction and polarization are defined only by considering light as wave। हम लोग लाइट को वेव कंसिडर करके हम लोग ये सभी फिनोमेना डिफाइन करते हैं। बट जो है वी यूज टू से कि लाइट जो है पार्टिकल फिनोमेना भी शो करता है, और उसको जो है वह जो फिनोमेना है जो कि पार्टिकल नेचर से डिफाइन होता है, दे आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। And we used to say some phenomena like interference, diffraction, polarization are defined by the help of wave theory of light, whereas some phenomena like photoelectric effect, Compton effect are defined by considering light as particle,
right? By considering light as particle. We used to say when a light of sufficiently high frequency, you are saying light is a wave, तो वेव को वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, देन वी यूज टू से, हम लोग पार्टिकल नेचर को कैसे स्टडी करते हैं, देन सी हेयर वी यूज टू से व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी falls on a metal surface, electrons are emitted. Electrons are emitted, right? And this very phenomenon of emission of electron from a metal surface by the help of light is known as photoelectric effect, right? And this very photoelectric effect is defined by particle nature of light. By the help of particle nature of light. Then question is this कि जो लाइट अगर पार्टिकल नेचर से डिफाइन होता है तो उस पार्टिकल को नाम क्या दिया जाए, उस पार्टिकल को, लाइट के उस पार्टिकल को नाम क्या देंगे, देन वी यूज टू से particles of light are called photons. Particles of light are called photons which are different from material particles. और यह जो होता है मटेरियल पार्टिकल से डिफरेंट होता है, राइट. वी यूज टू से अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक, देयर वाज ए फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक, उन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया था. वह क्वांटम थ्योरी क्या है, उन्होंने कहा था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट but it travels from one place to another place in the form of discrete packets. उन्होंने यह कहा था जिस तरह से कि अगर जो है राइफल का मूवमेंट होता है तो आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ता है जाता है, इट मीन्स उसकी एनर्जी आगे प्रोपगेट करते जाती है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाती है. देन क्वेश्चन इज दिस कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है तो क्या उसकी एनर्जी आगे कंटिन्यूसली चलते जा रही है, वेव फ्रंट के साथ चलते जाती है पूरी एनर्जी. देन वी यूज टू से नो, energy of electromagnetic wave which is available to us, that is not continuous but it is in the form of packets, right, in the form of discrete packets, it is available in the form of discrete packets. और उस डिस्क्रीट पैकेट को, उस डिस्क्रीट बंडल को नाम दिया गया क्वांटा और फोटोन्स. मीन्स electromagnetic energy which is available to us is in the form of packet known as quanta or photons. Now come over, what are the different important properties of photons? फोटोन्स पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन पिक्चर को पढ़ते हैं, हम लोग पार्टिकल को पिक्चर पढ़ते हैं, तो वह क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोज प्रॉपर्टीज. नंबर 1, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. अभी आपने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब रेडिएशन जो है किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. आपने कहा इट मीन दैट हेयर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर इज टेकिंग प्लेस. वी यूज टू राइट इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशंस बिहेव एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन. क्योंकि वह जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है किसी मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. मीन्स जब रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है तो वह जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराता है, विच इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड दिस वेरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफाइंड बाय फिनोमेना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. इट मीन दैट हेयर रेडिएशन शोज पार्टिकल नेचर. देन उस पार्टिकल को क्या नाम देंगे, देन वी यूज टू से दैट वेरी पार्टिकल इज योर फोटोन. दैट वेरी पार्टिकल इज योर फोटोन, राइट.
All second point is all photons emitted by any source travel through free space with the speed of light. कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स है, तो वह जो फोटोन इमिट करेगा, all those photons will move with the speed of light in each and every direction, right? Each photon has a different energy depending on the frequency nu of the radiation. जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, उस फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा. वी यूज टू से इक्वल टू h nu. H is Planck's constant, means when nu will vary, energy associated will also vary, right? And it is also equal to hc by lambda, means when nu will vary, lambda will vary, energy will also vary. Here h is constant, here h and c both are constant. Each photon has a different energy depending on the frequency nu of the radiation, and the formula is E equal to h nu, which is equal to hc by lambda. Here h is your Planck's constant. Here h is your Planck's constant whose value is 6.63 into 10 to the power minus 31 joule second, right? Frequency of a photon does not change when it travels from one medium to another medium. अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है लाइट एज वेव में, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? और उसमें आपने पढ़ा था कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी डज नॉट वेरी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. इट मीन दैट फोटोन का फ्रीक्वेंसी है वह नहीं चेंज होगा व्हेन इट विल मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. बट वी नो दैट a speed of photon changes at it travels through different media due to change in its wavelength. आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू न्यू लेमडा. आपने कहा कि V नहीं बदलेगा, बट यू नो दैट कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम लेमडा चेंजेज, सो स्पीड विल आल्सो चेंज, right? And we used to say a speed of a wave photon changes as it travels through different media due to the change in its wavelength, right? One more thing, rest mass of photon is zero. Question is this कि what is rest mass? Then we used to say कि rest mass होता है क्या? Then simply we used to say mass of anything when it is in rest condition is known as rest mass. Then it is considered that rest mass of a photon is zero. Then question is this कि what will be mass? Means rest mass of photon will be zero. Here we are considering photon as particle, means photon is a particle whose rest mass is zero. Then question is this कि what will be its moving mass? Then we used to say moving mass m of a photon can be determined by the formula E equal to m into c square, which is equal to h into nu. अभी आपने पढ़ा है E equal to h nu. अगर आपके पास न्यू फ्रीक्वेंसी का एक रेडिएशन है तो उसका जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? देन दैट विल बी इक्वल टू E equal to h into nu, राइट? इन टर्म ऑफ उस एनर्जी जो है, अगर उसका मास हम लोग मूविंग मास m कंसिडर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वह c स्पीड से मूव करता है, देन इट्स एनर्जी विल बी E equal to m into c स्क्वायर. अब इसी फॉर्मूला से m मास निकाल लीजिए, मूविंग मास निकाल लीजिए, देन m विल बी इक्वल टू E by c स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट फार्मूला, एंड फ्रॉम सेकेंड फार्मूला it will be equal to m will be equal to
h nu by c square, right? Next property is, here we are considering photon as particle having moving mass m. Then when it will have moving mass m, which is moving with velocity v, then what will be linear momentum possessed by it? Then we can say linear momentum possessed by a photon will be equal to m into v, means m into c, which will be equal to h nu by c. तो हम लोग h nu by c कहाँ से ले आए? तो जरा सा देखिए, तो आप c को एज इट इज रहने दीजिए, c को एज इट इज रहने दीजिए, और m का जो फॉर्मूला आपने जो है अभी पिछले वाले फॉर्मूले में आपने जो m लाया था गो देयर, वहाँ देखिए m इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, देन पुट दिस वेरी फॉर्मूला हेयर will be equal to एच न्यू बाई सी स्क्वायर, m के जगह पर इंटू सी ऊपर में, सी कैंसर, विच विल बी इक्वल टू एच न्यू बाय सी, राइट? मीन्स p विल बी इक्वल टू एच न्यू बाय सी. इट इज आल्सो इक्वल टू एस सी बाई लेमडा. क्वेश्चन इज हाउ? देन वी नो दैट v इक्वल टू न्यू लेमडा. हेयर v विल बी c, right? then nu equal to c by lambda, h nu equal to c by lambda, and one c is already present, c cancel, so it will be equal to h by lambda. It will be equal to h by lambda, right? We used to say photons are electrically neutral. Photons जो होते हैं electrically neutral होते हैं. It means that they will not be deflected by electric field or magnetic field, right? One more point is here. If the intensity of light of a given wavelength is increased, अगर जो है let us suppose कि जो है एक जो फोटोन्स इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है और उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लेमडा है, राइट? तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी एनर्जी होगी E विल बी इक्वल टू एच न्यू विच इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा. हर एक फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, क्योंकि जो हर एक फोटोन है उसका एनर्जी न्यू है, उसका वेवलेंथ लेमडा है, राइट? बट व्हाट विल हैपन व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल बी इंक्रीज? अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगा मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट विल इंक्रीज. अगर नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट मेरा बढ़ जाएगा, इसका मतलब अगर पहले अगर एक फोटोन था न्यू का और उसकी जो है एनर्जी ई थी, तो पहले अगर मान लिया जाए 100 इंसिडेंट हो रहे थे, उसकी एनर्जी होगी. अगर अब मेरा फोटोन्स बढ़े, इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स अगर जो है नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगी तो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी. इट मीन दैट टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी. इट मीन दैट द लाइट विच वी विल गेट दैट विल बी मोर इंटेंस, एंड दैट्स व्हाई वी यूज टू से if the intensity of light of given wavelength is increased, there is an increase in number of photons incident on a given area in a given time. अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो जो है नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे. इट मीन दैट, इस बात को याद रखिएगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन्स मीन्स इंक्रीज इन इंटेंसिटी. बट द एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी फोटोन will not vary, but the energy of each photon will remain the same, right? Okay, my dear. Next day we will discuss next thing.